TH94 న్యూస్కి స్వాగతం. జిల్లా తాండూరు పేదలకు నిరుద్యోగ యువతకు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని ఏఎస్జీఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ముజీబ్ ఖాన్ పేర్కొన్నారు. ఆదివారం తాండూరులో ఏఎస్జీఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఫౌండర్ చైర్మన్ అలహేజ్ ముజీబ్ ఖాన్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత కుట్టు మిషన్ శిక్షణ పొందిన 76 మందికి కుట్టు మిషన్లతో పాటు సర్టిఫికెట్లు సైతం అందజేశారు. అదేవిధంగా మెహందీ శిక్షణ పొందిన 90 మందికి సర్టిఫికెట్లు కూడా అందజేశారు. అంతేకాకుండా చిరు వ్యాపారం చేసుకునేందుకు మైక్రో ఫైనాన్స్ ద్వారా 12,70,000 తల్లిదండ్రులు లేని 76 మంది పేద పిల్లలకు ఆసరాగా 10 లక్షలు 27,000 చెక్కులను ఆయన చేతుల మీదుగా అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మౌలానా హాఫీజ్ మొహసిన్ మహమ్మద్ అలీ హమూమి, ఖతీబ్ మస్జిద్ ఏ సయ్యదనా అలీ తాండూరు, డాక్టర్ సంపత్ కుమార్, కరణం పురుషోత్తం, అబ్దుల్ రాహూఫ్, ఖాసిం, మహేదీన్ తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పేద విద్యార్థులకు, గృహిణులకు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఉచితంగా సేవలు అందిస్తుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం మత పెద్దలు, జమాత్ ఇస్లామీ, హిందూ మహబూబ్ నగర్ ఖాజా పాషా, ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఖుర్షీద్ హుసేన్, సయ్యద్ కమల్ అద్దర్, గఫూర్ పాషా, షౌకత్ అలీ, మౌలానా సోహెల్ ఉమారీ, మహమ్మద్ షఫీ, అడ్వకేట్ మతిన్, మదసిర్, కంప్యూటర్ ట్రైనర్ ఇర్షద్ నయూమ్ అఖ్తర్, అడ్వకేట్ ఫరీద్, సయ్యద్ ఖాసిం అలీ, తెలంగాణ ప్రదేశ్ యూత్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ లీడర్ మసూద్ అబేద్, ఖాజా రియాజుద్దీన్, ట్రస్ట్ సభ్యులు జవీద్, వసీం భారీ, అబ్దుల్ సమద్, మాజీ కౌన్సిలర్ అన్వర్ ఖాన్, ముజ్జు, ముస్లిం మైనారిటీ స్త్రీలు, పురుషులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. मुजीब खान साहब भी पठान है, आपने भी ये अज़्म किया है, ये इरादा किया है। बहुत से लोगों ने आपके बीच में आकर आपके बारे में तनकीद की, ट्रस्ट के बारे में गैर जरूरी बातें की, या जो हो सकता था वो की। आपने सबको सर पे नजर करते हुए, सबकी बातों को बाजू रखते हुए अपने काम में मसरूफ रहे और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करते रहे। मेहमान मुखर्रिर आपके सामने ट्रस्ट की पूरी तफसील सुनाएंगे, क्या क्या वादे आपने किए हैं और आपने अब तक कितने वादों को मुकम्मल किया है। लिहाजा मैं आप सभी हजरात को दावत देता हूं, जनाब मुजीब खान साहब की तरफ से ये ट्रस्ट आपका इस्तेकबाल करता है। आपकी जरूरत नहीं है, नई तंजीम बनाने की जरूरत नहीं है। आपके खून पसीने से कमाया हुआ दस्तरखान रेडी जमा के रेडी है बना। करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, दोस्ती करते हैं तो जान देते हैं, दुश्मनी करते हैं तो जान लेते हैं। ये पठानों की खुसूसियत है। हमारे जनाब मुजीब खान साहब भी पठान है, आपने भी ये अज़्म किया है, ये इरादा किया है। बहुत से लोगों ने आपके बीच में आकर आपके बारे में तनकीद की, ट्रस्ट के बारे में गैर जरूरी बातें की, या जो हो सकता था वो की। आपने सबको सर पे नजर करते हुए, सबकी बातों को बाजू रखते हुए अपने काम में मसरूफ रहे और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करते रहे। मेहमान मुखर्रिर आपके सामने ट्रस्ट की पूरी तफसील सुनाएंगे, क्या क्या वादे आपने किए हैं और आपने अब तक कितने वादों को मुकम्मल किया है। लिहाजा मैं आप सभी हजरात को दावत देता हूं, जनाब मुजीब खान साहब की तरफ से ये ट्रस्ट आपका इस्तेकबाल करता है। आपकी जरूरत नहीं है, नई तंजीम बनाने की जरूरत नहीं है। आपके खून पसीने से कमाया हुआ दस्तरखान रेडी जमा के रेडी है बना में आएगा, वो हमारा मेहमान कहलाएगा और जो भी जितने ट्रस्ट के मेंबरान हैं वो आपके मेजबान रहेंगे। ऐ बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, हम आंख बिछाने वाले हैं। आंख बिछाकर आपका ट्रस्ट में इस्तकबाल किया जाएगा। जो हजरात खिदमत खल्क करना चाहते हैं, कौम की जानते हैं खूब अपने वादों को, ज़मीरो ज़र्फ का सौदा कभी नहीं करते। उठा के देख लो तुम तारीख इन पठानों की, किसी के साथ ये कभी धोखा नहीं करते। वमा
अलैहि। से मैं अच्छा पढ़ पा रही हूँ और हमारे ट्यूशन सर भी हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शुक्रिया। To everyone, myself Kahuna Nas, daughter of Mirza Osman Bey. Today we are gathered here an important event organized by Janab Mujib Khan Sahab, organization of ASGMK Charitable Trust. I am very much thankful for his effort developing the future of young generations. I am learning here free computer and spoken English. The courses by ASGMK is an amazing opportunity. It is incredible to get such quality learning here without any cost. Thank you for our teacher, Mr. Mudassir sir. Thank you for making me confident and making me motivated to stand here and to speak in the front of you all. Last but not least, access to such a quality education for free is a fantastic, and it is going to be a huge assist for my future. I am very much thankful for ASGMK Charitable Trust members for giving me this opportunity. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. Thank you for giving me this opportunity. Myself Shaisa Tabassum, daughter of Husn Khan. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ मिस्टर मुजीब खान साहब का, जो इतनी हमें मदद कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी उड़ान देने के लिए कोशिश कर रहे हैं. इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए जहाँ हमें फ्री में मिल रहा. एक उड़ान दे रहे, उड़ने के लिए पंख हम लगा के उड़ने की कोशिश करें. और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मिस्टर मुदस्सिर सर का, जो हमें इतना मोटिवेट करते हैं. एक इंग्लिश क्लास के बाद एक 15 मिनट्स 20 मिनट्स मोटिवेशन देते हमें, जो सर की मोटिवेशन से मैं आज यहाँ पे स्टेज पे आने की हिम्मत है मुझे. सर इतना मोटिवेशन करते कि एक अंदर से जोश आता कि ये हम कर सकते, करेंगे, आगे करके बताएंगे. मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, जो हमें चाह रही हूँ मेरे बच्चे को, अब्दुल रहमान को. इसको हमारे मुजीब खान साहब का बहुत 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 मदद करे हैं. मुजीब खान साहब, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और जनाब अकबर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने भी मेरी मदद कर रहे हैं. और आशिया बहन भी मेरी मदद कर रहे हैं. उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ. जज़ाकल्लाह. स्टेज पे मौजूद तमाम मेहमान खुसूसी और मेरे प्यारे बहनें और माएँ और मेरे अजीज़ भाई और ASGMK के चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ, जिसने हमें ऐसे इदारे में जो सिर्फ तालीम नहीं देता बल्कि दिलों को जोड़ता है, उम्मीदों को जगाता है और जिंदगियों में रोशनी भरता है. हमारा ASGMK इंस्टीट्यूट किसी इमारत का नाम नहीं है. ये एक ऐसा साया है, एक पनाहगाह है जहाँ टूटी हुई उम्मीदों को परवान चढ़ाया जाता है. यहाँ कंप्यूटर की मुफ्त तालीम दी जाती है. टेलरिंग की जो सिखा रहे हैं, टेलरिंग के लिए जो ट्रेनिंग्स दी जाती है. और स्पोकन इंग्लिश के लिए जो बच्चियाँ जहाँ पर भी चाहते हैं, बैंक्स में या फिर इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे इंग्लिश टॉकिंग पे बोला जाता है. उर्दू में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसमें मर्द हजरात की टीम पूरे 36 वार्डों में मौजूद है. इसी तरह मौका मिल रहा है कि मैं ASGMK चैरिटेबल ट्रस्ट उनके चेयरमैन जनाब मुजीब खान साहब से के बारे में कुछ अल्फाज पेश करूं. ये ट्रस्ट हमारी सोसाइटी में खामोशी से लेकिन बहुत ही ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है. स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज के जरिए ट्रस्ट ने बहुत सी बहनों और यूथ को हुनर दिया. सिलाई मशीन गिफ्ट करके घरों में इज्जत के साथ रोजी कमाने का रास्ता फराहम की एक नई जिंदगी का जरिया है. ट्रस्ट ने विडोज के बच्चों के लिए फीस पे की, उनके बच्चों की तालीम को जारी रखा और उनके ज़रूरतों का ख्याल रखा. साथ ही कुरान के दर्स के
और तजवीद के तालीम और बच्चों और बड़ों दोनों को दीन से जोड़ने का काम किया, जो वाकई खिदमत यकीनन खिदमत काबिल है। ये काम प्रोग्राम रखा गया है जनाब मुजीब खान साहब की तरफ से एक ज़रूरतमंद लोगों की कोशिशों को आज फराम करने की, उनका आज एक ख़ास प्रोग्राम रखा गया है। जनाब मुजीब खान साहब पिछले कई साल से उन्होंने खिदमत में भी जुड़े थे, लेकिन पिछले साल से दिख के आ रहा लोगों के बीच में कि उन्होंने ये ट्रस्ट चला रहे बोल के, लेकिन बहुत फ़ायदा हो रहा ज़रूरतमंद लोगों की, और यतीम और बेकस बहनें और बेवाएँ बहनों के बच्चों की फ़ीस अदाई करे हैं उन्होंने, और आज एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और जो ख़वातीन को आज मशीन दे रहे हैं उनकी जानिब से। सबको हमारी तरफ से सलाम। पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट मुजीब खान साहब का, जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए फीस दिए हैं, जो बच्चे यतीम हैं, ट्यूशन पॉइंट लगाए हैं यहाँ पर, और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चल रहे हैं। मुदस्सिर सर जो है ना इसके सरपरस्त हैं, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट। See, without education is a traditional method जो हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज दी जा रही है ताकि बच्चों को आगे स्किल्स डेवलप कर सकें। स्पोकन जहाँ पे इंग्लिश कई बच्चे जैसे कि सभी बहनें बोले हैं, अभी तक सारे लोग अभी तक जो भी स्कीम्स दे रहे हैं सारे चीज़ें आपके सामने रखें, बस लड़कियों को आप आगे बढ़ाएं, उन्हें परवान दें और बच्चों को पहले तो अच्छी तरबियत के साथ इंसान बनाएं। Sir, Honorable Chief Guest, respected dignitaries, faculty team, class members and one and all. I am Tanzila. First of all, thank you for giving me opportunity to speak in front of you all. First of all, I thank Almighty for this day and giving us a wonderful opportunity to be part of this wonderful day. I am truly honored to stand before you and express a heartfelt gratitude of wonderful opportunity to contribute through various learning programs our trust is offering. Education and skills are the cornerstones of the progress. Your support and facilitation in providing tailoring classes, mehndi designing classes, tuition, spoken English classes, and apart from And good afternoon everyone, respected Mujeeb Khan sir and the dignitaries and all the trust members. I am Madiha and I am here to say a few words about the GMK Trust. I am truly grateful for the wonderful opportunity you have given me to learn and to grow. Your support and your belief and your patience means a lot to me, sir. And it inspires me to work harder and harder every day. Thank you for investing your precious time. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा काम है, दे रहे बेचारे, अल्लाह का एहसान है उनको। मेरे क्या बोलूं, बोलने भी नहीं आ रहा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बेचारे इतना अच्छा सोचे हमारे यहाँ से कारोबार करने वाले घर से, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। చేసుకోవడానికి లోన్ ఇచ్చారు ముజీబ్ ఖాన్ అన్నగారు. ఇలాంటి ఏజీఎంకే ట్రస్ట్ ద్వారా మరిన్ని పేదలకు అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి అతను సాయం చేస్తున్నాడు. ఈ సాయాన్ని నేను సద్వినియోగం చేసుకుంటానని కోరుకుంటున్నా. మరి ఇంతమంది పేదలకి సాయం చేయాలని ముజీబ్ ఖాన్ అన్నగారిని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. ఈ వేదికకి అలంకరణగా నిలిచినటువంటి ముజీబ్ సార్ గారు, అలాగే అపర చాణక్యుడైనటువంటి కర్ణ పురుషోత్తం గారు, మిగతా పెద్దలందరికీ కూడా పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఒక చిన్న మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంతే అండి. మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఉప్పు కప్పు రంగు ఒక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు, పురుషులందు పుణ్య పురుషుడు వేరయ్యా విశ్వకాభిరామ బిరుల వేరు. ఉప్పు కర్పూరం ఒకటేలాగా ఉంటుంది, కానీ దాని యొక్క రుచి మాత్రం వేరుగా ఉంటుంది. చూడడానికి మనం అందరం పురుషులమే, కానీ మన పురుషుల ముందు ఉత్తమ పురుషుడు మన ముజీబ్ గారు. ఎందుకంటే ఇలాంటి సద్భావన ఉత్తమ పురుషులకు మాత్రమే ఉంటుందండి, అవసరాలుగా ఉందండి. ఎప్పుడు కూడా తమ్ముడు నువ్వు రావాలి, కొద్దిగా నీ హెల్ప్ అవసరం ఉంది, పిల్లలు పేద విద్యార్థులు ఉండరు, ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ 1 or 2 months పిలిచేవాడు. బట్
मसरूफियात को आगे पीछे करे हैं। आज भी कुछ उनका प्रोग्राम था, फिर भी इस प्रोग्राम में आए हैं। तमाम स्टेज पे जितने भी हजरात, कुछ मेहमान आने खुसूसी हैदराबाद से भी आए, तमाम का शुक्रगुजार हैं हम, और हमारी माँ बहनें, बच्चियाँ और भाइयों, सब तमाम का भी शुक्र अदा करते हैं कि जितना भी चैरिटेबल ट्रस्ट से जो प्रोग्राम किया जा रहा है, आप सभी से सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, मगर मैं दो ऐसे मौजू बात करता हूँ आपके सामने कि थोड़ा हट के। जिस वक्त हम ये मुझे फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह सब लिपाई कहा उनके इस इरादे पे, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब एक से एक प्रोग्राम, उन्होंने जिस वक्त शुरू में जो प्रोग्राम करना चाह रहे थे तो वो प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह किए ही है। तो जैसा भी उनके जहन में और इजाफा प्रोग्राम आ रहे हैं, जो भी कौम के लिए या तांडुल की पब्लिक के लिए जो सहूलत और उनकी गुर्बत को दूर करने का प्रोग्राम उनके जहन में बार बार आता जा रहा है, और नए नए प्रोग्राम भी उन्होंने सामने रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 27 साल से आपसी मसाइल में और दूसरे चीज़ों में काम करती है। 2.5 साल पहले ये टेलरिंग का, मेहंदी का कोर्स और कंप्यूटर एमसेट की कोचिंग का कोर्स, मैथ्स की टीचिंग का कोर्स, टेट, डीएससी, ये सारे कोचिंग मुस्लिम एसोसिएशन के ज़रिए से चल रहे थे। इन्होंने ये काम शुरू कर हमारी बहुत बड़ी मदद की, और ऐसे कई तंजीमें हैं जो सुन्नतुल जमात भी एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, उन्होंने भी ये काम करते हैं। जमातुल उलमा का एक काम है, यानी हम सब मिलकर तांडुर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई किसी एक तंजीम कोई ना कोई काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का कि हम तांडुर में हैं। यकीन मानिए ये बेहतरीन काम, इससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। यहाँ पे जो भी काम अभी बताई गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे आकर जो तकरीर कर रहे हैं यहाँ पे, वाकई तारीफ़ के काबिल है। 2025 को इस मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर यहाँ बहुत सारे हमारे साथ जो मदद और नुसरत रही, जिसकी वजह से हम हमारे मंसूबों से भी बढ़कर अल्लाह ताला ने इस ट्रस्ट से खिदमत ली। मौजूद सामीन, बहुत सारी बातें ट्रस्ट के मुताल्लिक़ बहुत सारे अहबाब ने कही हैं। इससे पहले कि मैं ट्रस्ट की खैरुन्नास, ऐ अल्लाह के नबी, लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? ज़रा गौर फरमाइए। रऊफ भाई, मैं तांडुर में कुछ करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ऐसे दिन देखा, बहुत परेशान दिखना चाह रहे, कोई गरीब है जिनके घर में काम नहीं है, उन लोगों को काम दिलाना है। कोई बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फ़ीस नहीं है, उनको फ़ीस देना है। और कोई मामलात है, कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी कुछ करूँ ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आज वो कोशिशों को 1 साल 1.5 साल के अंदर एक रूप की शक्ल में आज देख रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, काबिल मुबारकबाद है मुजीब खान साहब। मैं जब उनकी बातें सुन रहा था, कब होगा ये ख्वाब है शायद समझ रहा था, लेकिन आज हकीकत में देख रहा हूँ। और ख़ासकर बहुत से मुखर्रिरीन ने बहुत कुछ कह दिया, कहने के लिए कुछ बाकी तो नहीं है, लेकिन ख़ासकर मैं आज सोहेल साहब नूरी साहब ने भी कहा, पाशा भाई ने भी कहा, मैं अप्रिशिएट करूँगा इस मौके पे। इधर 66% है, इधर 33% है। आप यहाँ पे मेजॉरिटी भी देखें, ये पार्टीशन भी इधर 66 है, इधर 33 है। आप देखो, मेजॉरिटी यहाँ भी जो है हमारे माँ बहनों की है। इनका हिस्सा बढ़ गया, हमारा हिस्सा कम हो गया। వాళ్ళకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీషు, అదేవిధంగా సైన్సు, ముజీబ్ ఖాన్ గారు ట్రస్ట్ చైర్మన్ గారు, మరి ఇటు కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి వేదికను అలంకరించినటువంటి అందరి పేర్లు తీసుకుంటే టైం మానవ సేవయే మాధవ సేవ అంటారు. మనుషుల్లో భగవంతుని చూసుకోవడమే గొప్పతనం. కాబట్టి మనం ఒకరికి ప్రజలకు కానీ బీదవాళ్ళకు కానీ ఎవరికైనా సహాయం చేస్తున్నామంటే అది భగవంతునికే చెందుతుందని సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మరి అటువంటి కార్యక్రమంలో ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు ముజీబ్ ఖాన్ గారు కూడా మాకు కోరడం జరిగింది. దాదాపుగా 30 సంవత్సరాల నుండి కూడా ముజీబ్ ఖాన్ గారు కూడా నాకు మంచి మిత్రులు. ఎన్నో కష్టాన్ని అనుభవించి ఈ స్థాయికి వచ్చి మరి తన యొక్క సంపాదనలో
మరి 10% అన్నా పేదవాళ్ళకి సాయం చేద్దామనే మంచి దృక్పథంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు ఈ యొక్క 1-2 సంవత్సరాల్లోనే మరి యొక్క ట్రస్ట్ కూడా ఉన్నత అభివృద్ధికి చెందడానికి సహకరించినటువంటి మరి ఏదైతే మతిన్ గారు కానీ అదేవిధంగా మదర్ సార్ గారు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. सबसे पहले मैं मुजीब सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने हमें 3 मंथ्स की स्टिचिंग कराए। यहाँ पे एक 1 मंथ का भी कोर्स रखे हैं और हमारे लिए अर्शिया मैडम भी थे वहाँ पे जम्मा कॉलोनी में, और जैसे कि समीना मैडम भी हमारे लिए मोटिवेशन करते रहते थे, ऐसे करना, ऐसे सिलाई करना, ऐसे हम लोग ऐसे वर्क करके हम लोग सीखे हैं। आज मुझे खुशी की बात है, आज भी मुझे सिलाई मशीन मिली है, उनसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। వాళ్ళకి పెద్దలకి అందరికీ మాకు టైలరింగ్ నేర్చినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇలాగే ఎప్పుడు సంతోషంగా సార్ వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ కూర్చున్న పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. నేను ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్గా ఉండేదాన్ని. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ పెద్ద సార్కి మా యొక్క ధన్యవాదాలు. మాకు కుట్టుడు కూడా రాని సమయంలో మా మేడం చాలా బాగా ఒక్కసారి కాకుండా 2 సార్లు అడిగితే గిట్ట చెప్పింది. మా మేడంకి చాలా థ్యాంక్స్. నా పేరు వచ్చేసి అనిత. నేను రాజు కాలనీలో ఉంటుంది. నాకేం కుట్టుడికి రాకుండా ఏం రాకుండే సార్ వాళ్ళ డ్రెస్లో వచ్చి నేను కుట్టేది నేర్చుకున్నాను. నేను ఇప్పుడు మొత్తం వస్తుంది. నాకు ఇప్పుడు మొత్తం నా కలపని నేను నిలబడగలుగుతున్నా. నేను ఎక్కడ పోయినా ఇప్పుడు ఏం పని చేయడానికి రాకుంటుండే నాకు అప్పుడు. ఇప్పుడు అంతా సార్ వాళ్ళ పేరు మీద నేను ఇప్పుడు ఆడుకోయినా కుట్టడానికి నేర్చుకున్నాను. నేను ఇప్పుడు నా బతుకుతాను. నాకు ఆడుకోయిన బతుకనికే నాకు ధైర్యం ఇచ్చిండు సార్ వాళ్ళ డ్రెస్ నుంచి. నేను చాలా రుణపడి ఉన్నా సార్ మీకు. నేను చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर ख़वातीन का, और खुसूसी जो मेहमान खुसूसी यहाँ पर मौजूद है, तांडुर के अफराद और हैदराबाद से भी जो बुजुर्ग हजरात आए हैं, तांडुर के भी जो हजरात है, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे ASGM के चैरिटेबल ट्रस्ट के जो तमाम जो है वॉलंटियर्स है और जो है वार्ड इंचार्ज है, और हमारे ख़ासकर शफी भाई, ये पूरी टीम जो है 1000 नौजवान है। हर एक का नाम तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकता। उनकी मेहनतों का नतीजा आप लोग देख रहे हैं। यहाँ जो सब जो यहाँ पर जो जमा है हमारे इस ASGM के चैरिटेबल ट्रस्ट के जो नौजवान हैं, और उन तमाम लोगों के दिलों के अंदर भी एक कौम का जज्बा है। सबकी ख्वाहिश ये है तांडुर के अंदर सब जो है डेवलपमेंट अच्छा से अच्छा हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो, क्योंकि एजुकेशन के अंदर सब आगे बढ़े और माशी हालत के अंदर भी सब आगे बढ़े। क्योंकि इस्लाम के अंदर इन चीज़ों के अंदर खासकर जो है खुदा पाक सल्लल्लाहु ने हम लोगों को तालीम दी है। जैसा इस्लाम के अंदर 5 फ़र्ज़ है, पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथी ज़कात, 5वां हज। इन मुख्तसर थोड़े 5 से 10 मिनट के अंदर जो मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को समझाने की। अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक दे। को फ़र्ज़ है जिसको अल्लाह ताला ने माल से नवाजा। ज़िंदगी में एक बार है, वो भी मालदार के लिए है। गरीब गुरबा के पास अल्लाह के पास उसकी पूछ नहीं है। दूसरा है ज़कात। ज़कात उसी शख्स के वास्ते है जिसको अल्लाह ने माल अता किया, और वो भी साल में एक बार है। हज का मसला आ गया ज़िंदगी में एक बार, और जो है ज़कात का मसला आया साल में एक बार। तीसरे नंबर पे आ रहे रोज़े मालदार के वास्ते भी है, गरीब के वास्ते भी है। लफ्ज़ बालिग तमाम लोगों के वास्ते है। वो जो है साल में 1 महीना है। पहला था ज़िंदगी में एक बार, दूसरा मसला आया साल में एक बार, तीसरा जो फ़र्ज आ गया साल में 1 महीना, और चौथा नंबर जो दूसरे तरीके से ले गया तो नमाज है दूसरे नंबर पे। उसको हम देखेंगे तो साल के बाद साल में महीना एक बार हो गया। नमाज का जब मसला आ गया, आपको दिन में हर 2-4 घंटे के बस अल्लाह के सामने हाजिरी देना है। नमाज एक ऐसा अमल है इंसान को जो है जीना सिखाता। तो दूसरा नंबर है हर 2-4 घंटे में हम अल्लाह के सामने हाजिर होना है। नंबर 1 पे क्या है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसको समझने की कोशिश करिए। हम ये समझते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के हम ईमान वाले हो गए, ख़त्म इसका मसला। क्योंकि हर चीज़ का तकाजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह जो है 24 घंटे इंसान की ज़िंदगी में आ गया, हर सेकंड उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी में आ गया। जैसा हर 2-4 घंटे में नमाज का मसला आ रहा, साल में एक बार 1 महीना रोज़ों का मसला, चीज़ का एक तकाजा है।
जैसा नमाज का तकाजा है, तुम ज़ाहिरी तौर पे नमाज पढ़ना है। नमाज का क्या है, नमाज बोले तो क्या है, लोग देख के बोलेंगे भाई ये नमाज है। जब अपन जिस्मानी एतबार से जाके इबादत कर रहे, वो है नमाज। क्यों? नमाज का तकाजा है हम अपने जिस्म को हरकत में लेना। ज़कात का तकाजा क्या है, माल को लोगों के ऊपर गरीब गुरबा के अंदर हम उसको खर्च करना। रोजे का तकाजा क्या है, हम भूखे पेट रह के अल्लाह को याद करना, उसकी इबादत करना, ये है रोजे का तकाजा। हज का तकाजा क्या है, हज का तकाजा ये है इंसान जो है अपने माल जान और वक्त लगाना, अल्लाह के वास्ते जो है माल का भी खर्च करना है, जान का भी खर्च करना है, वक्त भी खर्च करना है। इसी तरीके से कलमे का भी तकाजा है। कलमे का तकाजा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को सिखाया। हजरत मौलाना थोड़ी देर पहले सोहेल उमरी बताया आप लोगों को। नबूवत के बाद लोग ये समझते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की खिदमत की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान तो शुरू से ही है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलमे की जो दावत है ज़बान से नहीं है, अमली तौर पे है। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, ये कलमा ये इंसान को सिखाता। आज हम कलमे वाले हैं। अब गौर करके देखिए हमारी जिंदगी में हम कलमे के ऊपर कितना अमल कर रहे हैं। कलमे का जो तकाजा है, हम समझ रहे हैं मुसलमान है, मुसलमान की तो पहचान उसके अखलाक से होती। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बदनाम होने की रीजन क्या है, आज नॉन मुस्लिम जो है मुसलमान को बुरे अल्फाज से लक़ब से जो है पुकार रहा, तो गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। क्योंकि हमारे कैरेक्टर हम सुधारना है। क्योंकि कलमा ये नहीं सिखाता तुम्हारे अच्छे अखलाक, तुम गरीब की मदद करो, मजबूर की मदद करो, कर्जा किसी को परेशान है तो उसके कर्जे को माफ करो, कर्जा देने की ताकत रखते उसको कर्जा दियो, या तुम पड़ोसी है उसका हक अदा करो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी का हक बताया। कोई गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, उसके ऊपर एक हक है। कोई मुसलमान है तो उसके ऊपर दो हक है। कोई पड़ोसी मुसलमान है या उसका अपना रिश्तेदार मुसलमान है, पड़ोसी है अपना रिश्तेदार है, तो उसके ऊपर तीन हक हो गए। एक रिश्तेदार होने का हक, दूसरा ईमान वाले होने का हक, तीसरा पड़ोसी होने का हक। तो हम गौर करके देखिए हम कितना इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। जायजा लेना चाहिए कि तमाम जो है आप लोगों का वक्त निकाल कर, बुजुर्गों का वक्त निकाल कर यहाँ पे जमा होने का मकसद सिर्फ टाइम पास करना नहीं है, अपनी वाह वाह करा लेना नहीं है। हमारा मकसद ये हम अपने आखिरत की फिक्र कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी आखिरत की फिक्र करिए। क्योंकि अल्लाह ताला जो हम लोगों को आपका जरिया बनाया, आपके जरिए हम जन्नत में जाने का जरिया आप हमारा बनेंगे। और अल्लाह ताला जैसा हमारे को आपका जरिया बनाया, आप भी जो है हमारे वास्ते दुआ करिए। और जो पिछले जो हमारी नस्ल आने वाली है उनकी भी फिक्र करिए। एक हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु का वाक़या सुनाता हूँ, उसके अंदर दो सबक है, उसके बाद मेरी बात खत्म करता हूँ। हज़रत अब्दुल लिए जैसा चार्ज लिए, लेने के बाद नमाज से फारिग होकर बैतुल माल में गए। वहाँ पे जो साथी थे वो साथियों से पूछे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या अमल था। क्योंकि उससे पहले जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनके इंतकाल के बाद, उनके वफ़ात के बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है अमीरुल मोमिनीन बनाया गया। चार्ज लेने के बाद नमाज से फारिग होकर बैतुल माल के अंदर जाके ये पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु का अमल क्या था। अब गौर करिए मेरे भाई, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जो है अहदे दिया, जिसको जो है लीडर की क्वालिटी दिया, जिसको मार्केट के अंदर उसकी इज्जत दिया, उसका मतलब ये नहीं है उसके वास्ते, उसका मतलब अल्लाह ताला उसको इसलिए दिया कौम की खिदमत करने के वास्ते, अवाम की खिदमत करने के वास्ते। भले कोई भी कम्युनिटी का होंगे, किसी को रुतबा मिलने के बाद उसको ये उसको नींद नहीं आना चाहिए। क्योंकि उसको फिक्र इस बात की होना चाहिए अल्लाह ताला जो है ये मेरे को मुकाम अता करा, ये मेरे वास्ते नहीं अता करा। माल मेरे को जो अल्लाह दिया मेरे वास्ते नहीं दिया। अल्लाह जो लीडर की क्वालिटी मेरे अंदर रखी है मेरे वास्ते नहीं रखी, बल्कि कौम के वास्ते रखी। रोज़े महशर में जो अल्लाह ताला मेरे को पूछने वाला है, लिहाजा अल्लाह से डरना चाहिए। डर डर के एक एक सेकंड के वास्ते जो है हमारा अमल अल्लाह की रज़ा के वास्ते करना चाहिए। जैसा अपने साथियों को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ये पूछे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु का अमल क्या था, तो एक साथियाँ बताए कुछ राशन ले लेते थे, खाने पीने का कुछ राशन लेके यहाँ से निकल जाते थे। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब पूछा कहाँ जाते थे, साथियाँ बताए हमें पता नहीं किधर जाते थे, ये रोड पे जाते थे। फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वो रोड पे खुद निकल गए, लोगों को पूछते पूछते उस जगह को पहुँचे जहाँ पे एक झोपड़ी थी, एक नाबीना बूढ़ा था उस झोपड़ी के अंदर। जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु खुद अपने हाथ में राशन पानी लेकर उस बूढ़े के पास पहुँच जैसा खरीद गए, बूढ़ा जो है चप्पलों की आहट सुन के जोर से बोला 3 दिन से कहाँ थे। तो जब खामोशी से कोई जवाब नहीं दिए, फिर खामोश बैठ कर उस बूढ़े को जो है खाना खिलाना शुरू करे। जैसा खाना खिलाना शुरू करे वो बूढ़ा कहा भाई एक तो 3 दिन से आए पहले लेट, फिर दूसरा फिर खाना खिलाने भी तुम्हारे को नहीं आ रहा। जैसा ये अल्फाज सुनना था हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रोना शुरू करे। रोते ये पे अय बुजुर्ग
जो तुम्हें खाना खिलाते वो मुसलमान के अमीर थे, अमीर मोमिनीन थे, उन्होंने पर्दा फरमाए, दुनिया से रुखसत हो गए। आज उनकी जगह पे मैं हूँ, मैं आके आपको खाना खिला रहा हूँ। तो वो शख्स सीधा उठ गया, उठ के बोला, उमर तुम मुझे कलमा पढ़ो, क्योंकि बुढ़ा नान मुस्लिम था, करना पड़ो। तो हजरत उमर पूछे क्या बात है? उस शख्स ने कहा 2 साल से मुझे पता नहीं, मुसलमानों के अमीर थे, 2 साल से मुसलसिल आ रहे थे, खाना खिला रहे थे, मगर कभी ये नहीं बताया मैं मुसलमानों का अमीर हूँ। मेरी खिदमत करते गए, जबकि मैं मुसलमान नहीं था, मेरी खिदमत करते गए। मगर इस बात से समझ में आ गया इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। उठ के वो कलमा पड़ा। मेरे भाई आज गौर करके देखिए, आज हम मुसलमानों से लोग चिढ़ रहे, चिढ़ने का रीज़न क्या है? तालीम की कमी की वजह से। ये ट्रस्ट का मतलब क्या है? तालीम को आगे लेके जाना है। ये ट्रस्ट का मतलब ये है हमारे बच्चों के अंदर तालीम के अंदर आगे बढ़ना है, तालीम के मैदान के अंदर आगे बढ़ना है। क्योंकि तालीम की कमी की वजह से आज बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, आज बच्चे पड़ोसियों की इज्जत नहीं कर रहे, आज बच्चे उस्तादों की इज्जत नहीं कर रहे, आज बच्चे दोस्तों की इज्जत नहीं कर रहे। जहालत दिन पे दिन बढ़ते जा रही, क्योंकि अल्लाह को मालूम है जब दुनिया अल्लाह बनाए क़यामत तक क्या क्या होने वाला है। हुज़ैर पाक सल्लल्लाहु बता दिए। आज हम ये काम करके दुनिया को नहीं बदल सकते। ये काम करने की नीयत रख के कुछ हम कोशिश करेंगे तो समझो हम अपने आखिरत को बदल लिए, हम अल्लाह को राज़ी कर लिए। अल्लाह सिर्फ नीयतों को देखने वाला है, जन्नत की तैयारी सिर्फ हमारी नीयत पे है। अल्लाह तो डिसाइडेड करे हुए, अल्लाह किससे काम लेना है वो अल्लाह बराबर काम लेंगे। तो ये ट्रस्ट का मतलब ही ये है, क्योंकि एजुकेशन के अंदर हम सबको जो है आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारी औकात तो नहीं है। हम अल्लाह ताला जितना हमारे को ताकत दिया, हमारी ताकत से ज़्यादा हम काम कर रहे, ये अल्लाह के फजल से कर रहे। ये काम करने में मैं तहे दिल से हमारी टीम का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हमारे रफ़ी भाई का, हमारे शफी भाई का, मतीन भाई का, वसीम भाई का, जितने जो है अखिल बाबा, जितने भी लोग हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं समझना, क्योंकि जितने हजरात यहाँ पर जुड़े हुए हैं बहुत इसी दिल से लोग मेहनत कर रहे हैं। सबका ये ख्वाब है कि ट्रस्ट के जरिए लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अभी तो हमारे अखर साहब भी थोड़ी देर पहले ये बताए, तांडुर के हम खुशनसीब है, तांडुर के अंदर बहुत से तंजीमें हैं जो दिन की खिदमत में लगी हुई है, कौम के डेवलपमेंट में लगी हुई है। दूसरे जैसा बाड़ों से विखाराबाद है, कोड़ंगल है, परगी है, जहराबाद है, कई जगह जाके देखिए कई मुसलमान पैसे वाले वहाँ पर मौजूद है, मगर कोई ऐसे काम को आगे लेके नहीं बढ़ रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक से अलग अलग काम ले रहा, कोई जो है उल्मों की शक्ल में काम हो रहा, कोई जो है ट्रस्ट की शक्ल में काम हो रहा, कोई वेलफेयर की शक्ल में काम हो रहा, बड़ा हर तरीके से काम हो रहा। आज मेरी एक रिक्वेस्ट तमाम लोगों से ये है, क्योंकि काम तो हर एक अलग अलग शक्ल में हो रहा, असल जो है हमारे मेन काम ये करना चाहिए जो कलमे की दावत है, वो दावत को जो है किस तरह से करना चाहिए, अमली तौर पे इसको इम्प्लीमेंट लाना चाहिए। हमारे माशरे के अंदर तालीम को किस तरीके से ऊपर ला सकते, क्योंकि अब आने वाले, अब हमारा जो प्रोग्राम है, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, 6 महीने पहले जो हम काम की जो शुरुआत करें, अभी जो है शोले मुरी आप साहब जो है आप लोगों को तमाम तफसीली बता दिए ट्रस्ट के अंदर ये क्या क्या काम अल्लाह ताला हम लोगों से लिया, हम सोच भी नहीं सकते थे। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के हम काम शुरू करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर कामयाबी अता करा, बल्कि 100% ने उसके ज़्यादा हमारे को इसके अंदर जो है कामयाबी मिली। जो चीज़ें हम शुरू करे थे, जो टारगेट बने थे, वो टारगेट फुलफिल हो गया, बल्कि एक्स्ट्रा हो गया उसके अंदर। तो आगे आने वाले दिन में रमज़ान से 10 दिन पहले इसी मुकाम पे इंशाल्लाह ये काम करने का हमारा मकसद है। मेरे यहाँ बड़े बुजुर्ग जो हजरात हैं, इनसे तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं खुद इनके पर्सनल इन लोगों के घरों पे जाऊँगा, इन लोगों से बात करूँगा। शुरू से लोगों का मेरे को ताउन है, जितने ये मंच पे बैठे हुए जो चेहरे आप देख रहे हैं, हमेशा ही मीटिंग में आप लोग देख रहे, इसका मतलब हम नौजवान से ये लोगों की दुआएं भी है, ये लोगों के मशवरे भी है, ये काम के अंदर ये लोगों का तमाम लोगों का ताउन है। ये सिर्फ ASGM के चैरिटेबल ट्रस्ट का मुजीब खान साहब की टीम समझ रहे होंगे, बल्कि इन हजरात का भी जो है ताउन है हमारे साथ। आप इन लोगों के हक में भी दुआ करिए, मगर रमज़ान के वास्ते, रमज़ान से पहले जो है इंशाल्लाह में काम करेंगे। जैसा अब सोहेल मुझे बता रहे थे, उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जो ज़कात लेना वो वाक़ई नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना प्यारा सिस्टम हमारे वास्ते रखे, फ़र्ज़ है ज़कात का सिस्टम इतना प्यारा रखे, क्योंकि हम ज़कात का इस्तेमाल सही नहीं कर रहे। जब हम इन सब मिलके टीम बैठ के ज़कात का कुछ हिस्सा हम निकालेंगे, इंशाल्लाह यहाँ पे फिर लोगों को जमा करेंगे, और ज़कात का कुछ हिस्सा थोड़ा हम जमा करेंगे तो करोड़ों में जमा जाऊँगा इंशाल्लाह। उस टाइम पे फिर हम लोगों को यहाँ पर जमा करेंगे, जमा करके एजुकेशन के ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि परसों महमूद मदनी साहब का भी मैं बयान सुना, उन्होंने भी खास कर ये बता रहे थे उम्मत को 20 साल एजुकेशन पे मेहनत करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ नहीं है, पैसा कमाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, रिस्क देने वाले अल्लाह है। अल्लाह खुद पहली आयत जो तालीम के ताल्लुक से है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तालीम के ताल्लुक से बोले जब तुम्हारा को इल्म हासिल करना है
चीन तक जाना पड़ा तो जाओ, क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे हमारे बच्चों के अंदर इल्म कैसा आना चाहिए, हमारे बच्चे जो है IAS IPS कैसा बन सकते, हमारे बच्चे कौम की खिदमत कैसा कर सकते, भले कोई भी कम्युनिटी से होंगे, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे बच्चे देश का जो है नाम कैसा रोशन कर सकते, ये हम लोगों को फिक्र होना चाहिए। कि ट्रस्ट का मकसद ये है, और ख़ास कर जो है मस्जिद के बगल के अंदर इस्लामिक सेंटर खोलने का मकसद ये है, इस्लाम के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से ऐलान करे, खाली मस्जिद के अंदर नमाज का मसला नहीं है, मस्जिद से हर चीज़ अल्लाह के फजल से भी मिलती। लोगों को यकीन होना चाहिए, यहाँ पे जब मस्जिद को जाएंगे उसको माली भी मदद मिल सकती, जब मस्जिद को जाएंगे उसको हेल्थ की भी सपोर्ट हो सकती, उन मस्जिद को जाएगा एजुकेशन का भी सपोर्ट हो सकता, उन मस्जिद को जाएगा तो उसकी पर्सनल ज़िंदगी के मसले मसाले तो हल हो सकते। ये यकीन लोगों के दिल में आएगा तो यकीन करिए कि मस्जिद के अंदर एक सब खाली नहीं मिलेंगे तुम लोगों को, हम लोगों को। तो इसलिए जो है मसाजिद के अंदर इस्लामिक सेंटर क़ायम करना ज़रूरी है। अल्लाह के फजल से तांडुर के अंदर कुछ मसाजिद के अंदर इस्लामिक सेंटर क़ायम है, आइंदा से भी कभी कोई भी मसाजिद बनेंगे उसके साथ ही साथ इस्लामिक सेंटर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी की वजह से इंसान के अंदर कलमे के ऊपर अमल करने वाला बनेगा, क्योंकि कलमे का मकसद ही है खिदमत खल्क़ जो है आपसी इख्तिलाफ़ात ख़त्म होते। यकीन करिए हम आपस में एक दूसरे की जब मदद करेंगे, हम एक दूसरे की शिकायत 100% नहीं करेंगे, एक दूसरे से कभी नहीं चलेंगे हम। मैं किसी की मदद करा, मेरे सामने वो बंदा तरक्की हुआ तो मेरे हक़ से, मेरे ज़बान से उसके हक़ में दुआ निकलती, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था उसकी तरक्की करना, मैं चाहता था उसकी तरक्की देखना। जब मैं मदद करना किसी की नहीं करूँगा, मदद करने की नीयत भी नहीं रखूँगा, कोई बंदा तरक्की कर रहा तो मैं दिल में हसद होती इमीडिएटली गुनाह कबीरा में मुब्तला हो जाता, सीधा मैं शिकायत करता, ग़ीबत करता है, भाई किसी को टोपी पहनाया, किसी को चोरी करा, किसी का डाका डाला, भाई नहीं करा। क्या ज़रूरत है हमारे बीच से जो है इंसान अपनी आखिरत को ख़त्म कर ले रहा। मौत कब आने वाली नहीं मानो, बच्चे को भी मौत आ सकती, जवान को भी आ सकती, बुढ़ापे को भी आ सकती। हम लोगों का मकसद, ये ट्रस्ट का मकसद है अपनी आखिरत की फ़िक्र करना है, मौत की तैयारी करना है। इसकी वजह से जो है आज तमाम आप लोगों को बुलाकर ये छोटा सा आप लोगों को गिफ्ट है, ये गिफ्ट भी जो है आप लोगों का नसीब है। आप लोगों को अल्लाह ताला हमारे ज़रिए एक चीज़ आप लोगों को मिल रही, तो आप लोग भी ये कोशिश करना चाहिए नमाज़ों की, जैसा हमारी बहन अभी थोड़ी पर जिक्र करे, अल्लाह जो है किसी ना किसी को हम लोगों की रोज़गार के लिए ज़रिया बनाया। अब हम लोगों को भी चाहिए अल्लाह की इबादत जो है दिल से करना है और खुशी और खुजू से करना है, तो अल्लाह की इबादत और खुशी और खुजू से करेंगे, अल्लाह रिस्क में भी बरकत देगा, हमारे मकसद को अल्लाह बराबर कामयाबी पहुँचाऊँगा। और इससे पहले थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है अभी जिक्र करें हमारे कासिम साहब, यहाँ तांडुर के अंदर भी एक बेहतरीन जो है एजुकेशन के ताल्लुक से जो हो सकता, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी भी हम खोल सकते तो खोल सकते, कोई बड़ा मसला नहीं है। एक छोटी बात मैं अपनी बात कहकर ख़त्म करूँगा। परसों लास्ट टाइम जो है बागान के अंदर हमारे शाही मस्जिद के इमाम साहब, क्योंकि उम्मीद पोर्टल का जो है फॉर्म लोग सबमिट कर रहे, लाइन लगी हुई है लोगों की, रात के 12-1 बजे वहाँ एक शख्स जो है मैले कुचे कपड़ों के अंदर चप्पल भी सही नहीं होंगे पैर में, वो शख्स जहाल हालत में जो है कुछ हाथ में पेपर पकड़ के मस्जिद में दाखिल हुआ। तो हमारे इमाम साहब उसको पकड़ के पूछे क्या बात है, तुम कौन है? वो शख्स बोला भाई मेरी एक मस्जिद है और जो है वहाँ खबरस्तान भी है, उसके कुछ पेपर है जो उम्मत पोर्टल के अंदर मैं सबमिट करने आया। तो उन्होंने बोले आप वो किसका है? वो शख्स बोला वो मैं खुद मेरे पैसों से मैं खरीद के जो है मस्जिद भी बनाया और जो है कब्रिस्तान के लिए ज़मीन भी खरीदा। आप गौर करिए इस बात को। वो शख्स जो है वो जैसे उसकी हालत देखिए तो मुझसे उसको पलट के पूछे हालत के एतबार से तो उनको किसी से लिए जैसा है। ये शख्स बोल रहा मैं खुद बनाया। तो मुझसे उस बात से फिक्रमंद हो कि उसको ये पूछा भाई तुम कैसा बनाए? वो शख्स बोला रोज़ मैं 50 रुपये जो है मैं डब्बे में जमा करना शुरू करा। इसलिए शुरू करा हमारे गाँव के अंदर कोई शख्स नमाज़ पढ़ना था तो उसको 8 किलोमीटर उसको पैदल जाना पड़ता था। मस्जिद नहीं थी गांव के अंदर, 8 किलोमीटर पैदल जाके लोग मस्जिद को जो है नमाज अदा करते थे। वो मेरे को बड़ी तकलीफ थी, मेरे को फिक्र हुई, अल्लाह से मैं दुआ करा अल्लाह तो मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जो है 50 रुपये जमा करके अल्लाह का घर बनाया और कब्रिस्तान के वासी जगह दिया। तो फिर बोले तुम्हारी कमाई क्या है? वो शख्स पलट के क्या बताया? अपना ऑटो बताया। गौर करिए इस बात को, ऑटो चलाने वाला शख्स अल्लाह का घर बना सकता और कब्रिस्तान की मस्जिद दे सकता। आज दुनिया के अंदर कई मालदार क्या नहीं कर सकते। और जो यहाँ पे कुछ मेहमान हमारे खासकर जो लोन ले रहे वो लोग भी ऑटो चलाने वाले हैं। उन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। माल के देने वाले अल्लाह है, इज़्ज़त के देने वाले अल्लाह है। सिर्फ हमारी नीयत अल्लाह को राज। ऑटो चलाने वाला हूँ मैं, बंडी चलाने वाला हूँ मैं, रिक्शा चलाने वाला हूँ मैं, क्या किसी की मदद कर सकूँ? कभी ये ख्याल नहीं आना
क्योंकि दिल में उसके ईमान उसका मजबूत रहेगा, यकीन अल्लाह की ज़ात पे मजबूत रहेगा, बराबर अल्लाह उसकी मदद करके बताएगा। अल्लाह ऐसी मदद करेगा, गैब से दुनिया देखते रहेंगे, अल्लाह उसकी मदद करेगा। जो लोग पैसे के बलबूते पे जो फ़ख्र करते, अपने जो है रसूखात के ऊपर फ़ख्र करते, वो फ़ख्र पूरे भाड़ में चले जाते। अल्लाह की ज़ात पे यकीन करने वाला उन्हें तनहा भी रहेगा, उन दुनिया के अंदर भी कामयाब रहेगा, उन्हें रोज़े महशर में भी कामयाब रहेगा। जो दुनिया के अंदर जिसको अल्लाह माल से नवाजा, उन्हें समझ रहा मेरी माल की वजह से इज्जत में भी तो उन्हें धोखे में है, उन्हें समझ रहा मेरे माल से लोग जमा रहे तो उन गलत फहमी में है। हर चीज़ के देने वाले अल्लाह है। जो कुछ भी होता, अच्छा हो या बुरा हो, तकलीफ भी यही तो अल्लाह ताला जो उसका अदर देने वाले हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी के पैर में कांटा भी चुभेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बैतन बदल देने वाले हैं। जो हम तकलीफ में हैं तो कभी फिक्र नहीं करना, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के वास्ते इंसान भूखा भी रहेगा, अल्लाह उसके बदल उसका अता करने वाले हैं। सिर्फ इम्तिहान की जगह दुनिया है, इसके अंदर हमारे को कामयाब होना है, अल्लाह को राज़ी करना है। बस इस बात से मेरी बात ख़त्म करता हूँ। आप तमाम बहन और भाइयों से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम वक़ाल तआला फ़ी शअनि अज़्मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद। प्रोग्राम बहुत अहम और बहुत अजीम प्रोग्राम है जो तकरीबन सुबह 10:30 बजे से चल रहा है और अब 2 बजने के करीब है। आप तमाम हजरात इंतहाई सब्र के साथ, नज़्म के साथ बैठे हुए हैं। बुजुर्गान दीन भी यहाँ मौजूद है। वक्त बहुत तवील हो चुका है हुए हैं, क्या क्या काम चल रहा है ये हर एक इंसान आपके सामने बता चुके हैं। इस पे बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। मैं कुरान मजीद की एक आयत पाक जो आपके सामने तिलावत मैंने की है, अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। ये आयत बड़ी तफसीली है, इसका तर्जुमा भी बड़ा तफसीली है, तफसीर भी है। इसमें 2-3 अहम बातें इम्पोर्टेंट आज के इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़, बल्कि हमारी ज़िंदगी के हर गोशे से मुताल्लिक़ बहुत अहम है। तो इसमें तफसील में गए बगैर मैं इसका तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर 2-3 बातें अहम करके बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। हाज़िरीन मुहतरम, रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इस आयत में इंसान की अज़मत, इंसान का मकाम और इंसान के मर्तबे का जिक्र फरमाया और फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को यानी इंसान के बेटे को बहुत अजीम मकाम अता फरमाया। और उसके बाद फरमाया वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने उसको ज़मीन पर भी और खुद तरी में भी और खुश्की में भी, यानी समंदरों में और ज़मीन पर, हवाओं में, हर जगह उसको अल्लाह ने तमाम सवारियों को उसको मुसक्कर कर दिया, उसके अंडर कंट्रोल कर दिया। अगर वो समंदर में जाना चाहता है तो समंदर में सैर कर सकता है, वो हवाओं में उड़ना चाहता है तो वहाँ सैर कर सकता है, वो ज़मीन पे चलना चाहता है तो वहाँ पर भी सवारियाँ उसके लिए अल्लाह ने मुसक्कर कर दिया। अजीज भाई और नंदेश सामने रहे। उसके बाद मुझे भाई यतीम बच्चों की जो फीसेस AGM के चैरिटेबल ट्रस्ट मुजीब खान साहब की तरफ से अदा हो रही हैं, उनमें से मैं 2 खवातीन को बुलाना चाहूँगा। चेक के लिए वो रेडी रहे। AGM के चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी
उसके बाद सिविंग मशीन जिनको देनी है खान साहब अपने हाथों से अपनी टीम के साथ देंगे। 4 लोगों के नाम है, 4 खवातीन के, एक अनुषा, दूसरे इधर देखिए, कैमरा देखिए, यहाँ पे सामने आ जाओ अपने। ओके। बाकी का जो चेक्स है और जो मशीनें हैं इंशाल्लाह नमाज के बाद जोहर की नमाज अदा की जाएगी, नमाज के बाद इंशाल्लाह दिए जाएंगे। आप इधर आइए, आप थोड़ा ओके। Gracias.